Hello friends, welcome to my channel E Ustad. In this video, we will be dealing with some most important questions of assistant to registrar exam, particularly relating to the topic the role of the role of registrar cooperative societies. So I have chosen some most important questions regarding this topic. I hope these all will be helpful to all of us. So let us start with the question number 1. So before we start, I will tell you one thing कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं पहले मैं सारे पढ़ूंगा. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चन आप जो है अपने पेन और कोई पेपर साथ में रखें. तो मैं पहले आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ूंगा. अब अपने आंसर्स नोट कीजिए और उसके बाद लास्ट पे जब मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए. इससे जो दो हमारे मोटिव्स सेटिस्फाई होंगे. एक तो ये कि हमें जो है ये अगर हमें ये ना पता हो तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इस किस क्वेश्चन का क्या आंसर है. और दूसरा कि हमें ये भी पता चलेगा कि अगर हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा है तो हमें अभी इस टाइम कितना याद है. तो ये हमारे लिए एक टेस्ट का काम करेगा. सो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, हु इज़ रिगार्डेड एज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज? चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, or none of the above. So who is regarded as the friend, philosopher and guide of cooperative societies? So इसको सोच के क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब अपने पास आंसर नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, who is the head of cooperative department in the state? एक स्टेट में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को हेड कौन करता है? गवर्नर, सीएम, सेक्रेटरी of cooperative societies, registrar cooperative societies. आप क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर नोट कर लीजिए. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is or not true about the powers of a registrar of cooperative societies? इनमें से कौन सा पावर registrar of cooperative societies के लिए नहीं है? He can supersede the board or management of cooperative society. Any authorized officer other than registrar can register a cooperative society. He has no role in any dispute resolution of cooperative societies, but courts have. He has judicial powers with respect to dispute of management nature. So question number 3 का आप आंसर नोट कीजिए. So now the question number 4 is regarding the power of appeal of registrar of cooperative societies, which statement is not true? आप जो है एक काम कीजिए, इन जो क्वेश्चंस की वर्डिंग पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. Registrar has the power to hear appeals against the decision of a cooperative regarding the non-admission of a member. He has the power to hear appeals regarding the expulsion of a member from the cooperative society. He can hear all appeals without those which are against the award of a tribunal. He can hear all appeals against an order of liquidator of a cooperative society. आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नोट कीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज रिगार्डिंग द पावर ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और नॉट ट्रू? Power of audit of cooperative society, which of the following statement is not true? Registrar cooperative societies conducts the audit only. Directorate of Cooperative Audit conducts the audit of cooperative society only. Either A or B, neither A nor B. आप आंसर नोट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6, in which of the following circumstances cannot a registrar issue directives? For the merger of two cooperative societies, direct the cooperatives to amend its bylaws, divide a cooperative society into 2 or more cooperative societies, can issue directives all
कैन इशू directives in all of the above cases. In all of the above cases, यहाँ पे in all of the above cases होगा। हाँ, आंसर नोट करके रखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंस्टिट्यूट द पावर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड क्वेश्चन बोलने की, क्योंकि जितनी तेज़ में पढ़ रहा हूँ इतनी देर में जो है आप यहाँ है कि आप नहीं कर सकते ये क्वेश्चन, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट कीजिए। Which of the following do not constitute the power of a registrar of cooperative societies? Financial powers, emergency powers, discretionary powers, legislative powers. कौन सा पावर नहीं है आप नोट कीजिए। Question number 8. To seize documents and property of a cooperative society, a registrar can use financial powers, emergency powers, discretionary powers, power of audit. Question number 9. Under what circumstances can a registrar wind up a cooperative society? If it is not functioning for a long time, if it is non-viable in nature, he cannot wind up a cooperative society. Both A and B. Question number 10 and last question. Who is the highest ranked officer at the divisional level in a cooperative society department? Registrar cooperative society, joint registrar cooperative society, circle registrar cooperative society या डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनमें से कौन सा है जो डिविजनल लेवल पे जो हेड करता है? सो अभी आंसर्स देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन, हु इज़ रिगार्डेड एज द फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ कोऑपरेटिव। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जो क्वेश्चन नंबर 10 इन सारे 10 क्वेश्चन के आपने आंसर लिख के रखे होंगे। सो ये जो इस टाइम जो वक्त है इस एग्ज़ाम का जहाँ पे पहुँचा है, आपको अब जितना हो सके आप MCQs ट्राई कर दीजिए, क्योंकि यही है, क्योंकि आपको वहाँ जाके ट्रेनिंग तो यही है एग्ज़ाम की है, तो फंडा आप यही है कि आप जितने हो सके, जितने ज़्यादा हो सके खुद बनाइए और ख़ुद कीजिए। सो बेहतर रहेगा आपके लिए। हु इज़ रिगार्डेड एज द फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। सो इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नन ऑफ द वो है, क्योंकि फ्रेंड फिलोसफर और गाइड जो है वो रजिस्ट्रार होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2, उसको क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द हेड ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन ए स्टेट। एक स्टेट में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है? गवर्नर, CM, सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार। सो इसका आंसर रजिस्ट्रार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट ट्रू। सो मैंने पहले भी कहा कि आप जो है इन वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिए, जहाँ पे भी आपको नॉट ट्रू दिखे तो वहाँ आप फॉल्स ये मिटा कर अगर आप लिख भी लेने फॉल्स अबाउट द पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार, सो समझने में हमें ये ज़्यादा मतलब फिर हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। सो ये नॉट ट्रू करके हमें कंफ्यूज किया जाता है वहाँ पे। सो आप वो पहले कर लीजिए। ही कैन सुपरसीड, इनमें से देखना हमें कौन सा सही नहीं है। ही कैन सुपरसीड द बोर्ड और मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सही है। ही कैन सुपरसीड एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर अदर देन रजिस्ट्रार कैन रजिस्टर ए सोसाइटी। यहाँ पे भी एक चीज़ याद रख लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रार है उसका मेन काम रजिस्टर करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, लेकिन वो किसी को भी ऑथोराइज कर सकता है कि वो भी जो है उसके बिहाफ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कर सकता है। सो ये भी सही है। ही हैज़ नो रोल इन एनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बट कोर्ट्स हैव। सो इस बारे में बात करते हैं। ही हैज़ जुडिशल पावर्स, ये अहम है। जहाँ पे हम सोचते हैं इसके पास जुडिशल पावर्स नहीं है, लेकिन इसके पास जुडिशल पावर्स होते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। सो यहाँ पे जो है कोर्ट्स का हमें एक चीज़ पता है, कोर्ट्स का इसमें कोई रोल नहीं रहता है कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। सो ये वाला आंसर सही होगा। सही मतलब ये गलत यही वाला होगा, तो हमारा आंसर यही है। रिगार्डिंग द पावर ऑफ अपील ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, power of appeal of registrar of cooperative societies, which statement is not true? Not true। अब मैं गैस कर रहा हूँ कि हमें वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कोई इजी क्वेश्चन वहाँ पे आने वाला नहीं है, ये उम्मीद आप ना रखें। रजिस्ट्रार हैज़ द पावर टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी रिगार्डिंग द नॉन एडमिशन ऑफ ए मेंबर। यानी हमें पावर ऑफ अपील, हम किन किन सूरतों में जो रजिस्ट्रार के पास पावर ऑफ अपील के लिए जा सकते हैं। सो
Registrar has the power to hear appeals against the decision of a cooperative society regarding the non, अगर कोई cooperative society किसी मेंबर को एडमिशन नहीं देता है तो उस सूरत में हम अपील कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास, ये सही है। he has the power to hear appeals regarding the expulsion of a member, अगर कोई expulsion किया तो किसी को बाहर निकाल दिया जाता है, उस मामले में भी हम उसके पास जा सकते हैं। he can hear all appeals without those which are against the award of a tribunal, जो अगर किसी ट्रिब्यूनल ने कोई अवार्ड दिया है, कोई डिसीजन दिया है, तो ये कह रहा है कि वो उसके खिलाफ ही अपील्स हेयर नहीं कर सकता, जो कि गलत है। हमारा आंसर यही होगा। सो ये भी हम पढ़ते हैं ही कैन, क्योंकि हमें यहाँ से हमें अगर आंसर एक मिलता है, गलत एक है, 3 सही हैं, यानी हमें ये 3 याद रखने हैं, ये एक याद नहीं रखना है। इस जो अगर ये जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं, इनमें से आपको ये मैंने नॉट ट्रू करके इसलिए ये वाले इसलिए रखे हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। आपको अगर आप ये पढ़ें तो आपको सारे पावर्स उसके समझ आएंगे। और रिगार्डिंग अब क्वेश्चन नंबर 5 है, रिगार्डिंग द पावर ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। अब देख लीजिए, नॉट फॉल्स मतलब ये ट्रू कौन सा है। सो इसमें रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंडक्ट द ऑडिट ओनली, यहाँ पे ओनली टेक्निकल ये जो है कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे भी ऑल है। डायरेक्टरेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव ऑडिट, Directorate of Cooperative Audit conducts the audit of cooperative society only either A or B, neither A nor B। so ये दोनों हैं, क्योंकि कई स्टेट्स में सिर्फ रजिस्ट्रार ऑडिट करता है, कई स्टेट्स में सिर्फ यही ऑडिट करता है। सो हमारा आंसर दोनों होगा, इधर ए, या तो ये करेगा या तो ये करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन नॉट ए रजिस्ट्रार इशू डायरेक्टिव्स। किन मामलों में वो डायरेक्टिव इशू नहीं कर सकता है? सारे मामलों में कर सकता है, सिर्फ एक में ना, ये इन सारे मामलों। सो इसका आंसर होगा ही कैन इशू डायरेक्टिव्स इन ऑल ऑफ द अबव केसेस। मर्जर भी, अमेंड भी, और दो कोऑपरेटिव्स को एक कोऑपरेटिव को डिवाइड भी कर सकता है। सो इनमें से हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द पावर ऑफ रजिस्ट्रार। इनमें से कौन सा है जो पावर ऑफ रजिस्ट्रार नहीं है, वो है लेजिस्लेटिव पावर्स। इसके पास बाकी सारे पावर्स होते हैं। To seize the documents and property of a cooperative society, a registrar can use, यानी किसी डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए उसको वो कौन से पावर्स यूज करेगा? इमरजेंसी पावर्स। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन रजिस्ट्रार वाइंड अप ए सोसाइटी, वो किन हालात में एक सोसाइटी को वाइंड अप कर सकता है? सो इफ इट इज नॉट फंक्शनिंग, ओ या ये नॉन विएबल है। सो बोथ ए एंड बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट होगा, who is the highest ranked officer at the divisional level? so ये है सर्कल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सर्कल रजिस्ट्रार अलग सा पोस्ट होता है। सो ये थे कुछ रोल एंड पावर्स ऑफ कुछ एमसीक्यूज रिगार्डिंग द रोल एंड पावर्स ऑफ दिस रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर आपको ये सही लगा, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग, हमारे अपने सारे दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि सबको जो है ज़रूरत हो जो है। आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप 10 बार भी पढ़ें फिर भी आपको इतनी सारी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आई एम श्योर। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपने ये पावर्स नहीं पढ़े हैं या आपको कहीं से मिल नहीं रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर लीजिए, यहाँ पे कमेंट कर लीजिए, तो ज़रूर मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको जल्दी से 5 मिनट का वीडियो बना के वो पेश करूँगा। सो लास्ट रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।